नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। बाराबनी विधानसभा के बाराबनी पंचायत इलाके में स्थित मदन मोहन जिग्मा केमिकल सोडियम सिलिकेट फैक्ट्री में सोमवार सुबह अचानक जोरदार धमाके के साथ जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। कारखाने से लगातार निकल रही जहरीली गैस आसपास के इलाके में फैल गई, जिससे पूरा इलाका अंधकारमय हो गया। लोगों को इस कड़ी धूप में भी दहशत के कारण अपने अपने घरों से अपने परिजनों को लेकर बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह शरण ली। लोगों की माने तो कारखाने में यह धमाका सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुआ। আমি ওই গাড়ি থেকে ঘাস কেটে বাড়ি থেকে আসছি, ওই আমাদের জমিটা আছে পোড়াদের, তো এই গেটে এলাম, একটা আওয়াজ হলো, তাও ধোঁয়া উঠছে, পুরো ধোঁয়া উঠছে। তখন তারপরে এখানে চলে এলাম, এই গেট থেকে আসতে এইখানে আর ফির একটা ফুটলো, তখন আমি তাও এইদিকে যেতে যেতে এমন অন্ধকার হয়ে গেল। আর কিছু লোক ছিল, বলে সরে যান, আপনারা চলুন ওইদিকে সাইডে চলুন বলছে, এটা অন্ধকার গ্যাসটা নেবেন না। এত ফুটলো কী কারণে আমি কোনো বুঝতে পারলাম না। থাকো, তুমি ইচ্ছা তোমার লীলা করবো বলে আমি তখন ডাইকে সাইড হয়ে গেলাম। কি নাম আপনার? আদরি কি হয়েছিল? আচ্ছা, ছোট ছোট বাচ্চা যদি ধুমার সাথে কি হতো অবস্থাটা? আগে হাওয়াটা ওদিকে গেল বলে হাওয়াটা ওদিকে গেল। প্রথমে গ্রাম ঘুরেছে, প্রথমে হাওয়াটা ছিল বলে এদিকে ঢুকেছে, তারপরে হাওয়াটা উল্টে গেল, তখন ওদিকে চলে গেল ধুমাটা। কি নাম আপনার? আমাকে এসে বলছে বাচ্চাগুলো ছেড়ে দাও, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও। এখানে প্রথমে ধোঁয়া শুরু হয়, ধোঁয়ার পর পুরো গ্রাম ধোঁয়াতে ভর্তি হয়ে যায়। আর আমার এই ছোটো রুমের মধ্যে জানলা নেই, বাচ্চা আমি কী অবস্থায় বসেছি, বাচ্চা আমি মানে কাঁচতে কাঁচতে বমি করে ফেলছে, এত অবস্থা খারাপ বাচ্চাদের। এবার আমি 18-20টা বাচ্চা কীভাবে বসাবো বলুন? আর এই ছোটো রুমটার মধ্যে রান্না সব কিছু। কি হয়েছিল এখানে? ধোঁয়া, প্রথমে ধোঁয়া, ওই ফ্যাক্টরি বাস্ট হয়ে প্রথম শুধু ধোঁয়া থেকে। আচ্ছা, কি নাম আপনার? গায়ত্রী মণ্ডল। এখানে এই ব্লাস্টিং হয়ে গেছিল, পুরা অন্ধকার, পুরা ধোঁয়া একবারে। আচ্ছা, থাকা মুশকিল হয়ে গেছিল, আমাদের গ্রাম পুরো অন্ধকার হয়ে গেছিল। আর ইয়ার আগেও একবার ফুটেছিল। কিসের কারখানা এটা? সিলিকেট কারখানা বলছে। আচ্ছা, কোনো অ্যাকশন দেওয়া হয়নি। এখন কি অবস্থা? এখন এই গ্যাস সহ্য হচ্ছে না, পুরা অন্ধকারে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো। গ্রামের লোক সব বাইরে চলে এসেছিল, গ্রাম থাকা মুশকিল হয়ে গেছিল। ইয়ার আগেও হয়েছিল, কোনো অ্যাকশন দেওয়া হয়নি। ইয়ার আগেও ফুটেছিল, কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। এখানে পুলিশ এসছে, কিছু বলছে? না, পুলিশ কিছু বলেনি এখন। পুলিশ কি নাম আপনার? নারায়ণ ঠাকুর। হচ্ছে 15 মিনিট আগে যে অবস্থা ছিল, ওখানে আপনারা চলাফেরা করতে পারছেন না, গেছে ছোটো বাচ্চা আছে, স্কুল আছে, স্কুল তো ছুটি দিয়ে দিলে ছেলেবেলাকে। তো এই অবস্থা এখন দেখছি, ভিতরে আমরা সব গিয়েছি, থানা থেকে লোক এসছে। তো এখন যা পরিস্থিতি এখানে, কেউ কিছু বলতে পারছে না যে কী হবে না হবে, মানে যে কোনো সময় হতে পারে। আজকে 2-3 বার হলো, আরও কখনো হবে না যে সেটা বলতে পারছি না। ইঞ্জিনিয়ারও নাই ওখানে, এখানে যে কারোর সঙ্গে আমরা কোনো অ্যাডভাইস নিব যার হবে না কি, সেটা ওখানে কেউ বলতে লাগছে। ফ্যাক্টরিতে আমরা সবাই গেছি, ওখানে কেউ বলতে পারছে না কিছু, কোনো লোকই না ওদের, এমনি চলছে। সব গেছি, তোমার থানা থেকে লোক এসছে, লোকাল লোক গেছি, সবাই গিয়ে দেখছি কোনো ইঞ্জিনিয়ার নাই, কেউ কিছু বলতে পারছে না যে আর হবে কি না, কেন হইলো বা কখন হইলো।
বারবার দুবার, এখন আজকে দুবার হলো, এই অবস্থায় চলছে। কি নাম আপনার? আমার নাম বীরেন মণ্ডল। ওর সাথে একবার বাস্ট হয়েছিল, গ্রামের অনেকের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আমার বাড়িতে ক্ষতি হয়েছে। আমি থানায় বড়বাবুকে রিপোর্ট দিয়েছি, অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, বিএলএলকে দিয়েছি, বিডিওকে দিয়েছি, তার রিসিভ আমার কাছে রাখা আছে। আমাদের এমএলএকেও দিয়েছি, রিপোর্ট রাখা আছে। পার্টির ছেলেরা এসে পথে বলেছি দাদা ওরকম করো না, যা করার আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করা নাই। পুনরায় এখন ফের আজ এই আবার বাস্ট হলো, ধোঁয়াক্রান্ত, গোটা গা আক্রান্ত হয়েছে। তাতে সব যার বাড়ি যাবেন তার বাড়ি রিপোর্ট পাবেন থানা থেকে। এখন আবার সবাই অ্যাপ্লিকেশন দিচ্ছে, আর বড় থানা থেকে পার্টিও এসেছে। তো আজকেরও ক্ষতি, আমরা ফ্যাক্টরি সবাই গিয়েছি, ফ্যাক্টরিতে কোনো ইঞ্জিনিয়ার নাই, কেউ বলতে পারছে না কেন এলো, আর হবে কি না তারও কোনো ব্যবস্থা নাই, কী হবে এলো তারও নাই, কোনো লোক নয়, লোকাল কটা লোক মাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল। अभी तो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। अभी तो प्लांट बंद ही था, प्लांट बंद रहने के कारण लेबर भी नहीं था, स्टाफ खाली देख रेख में हुआ है, देख रेख कर रहा था। अभी नॉर्मल टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। तो गांववासी लोग का आप लोग ढुकने नहीं देते रहे? गांववासी लोग बोल रहा कि हम लोग अंदर जा रहे थे, ये निकाल। तो सब लोग गाँववासी ही है ना, देखिए ना, ये लोग से बात कर लीजिए। तो ऐसा कोई क्षति कुछ हुआ है नहीं, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या बनता है क्या? इसमें सोडियम सिलिकेट बनता है। अच्छा, सोडियम सिलिकेट का प्लांट है। कितना बजे हुआ है? ये क्या ब्लास्ट हुआ है क्या? नहीं, ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। वो नॉर्मली टेक्निकली प्रॉब्लम होता है, एक फ्लो लाइन होता है जी। उसी से थोड़ा जो गैस और एयर का मिक्सिंग में प्रॉब्लम हुआ है, जिसके चलते वो एयर को हाई एक क्या नाम है फैक्ट्री का? ये जिग्मा केमिकल लिमिटेड। आपका नाम? अवधेश कुमार। क्या पोस्ट में है? मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आसनसोल नगर निगम के 12 नंबर वार्ड अंतर्गत जमुड़िया के नीघा न्यू कॉलोनी के निवासियों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर आज नीघा से जमुड़िया तक जाने वाले सड़क पर अवरोध कर दिया। इलाके के लोगों का आरोप है कि 12 नंबर वार्ड के पार्षद समरजीत गोस्वामी इलाके में कभी नज़र ही नहीं आते। उनको बार बार पानी की समस्या के बारे में कहा गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया है। इस प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या से स्थानीय निवासी इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आज उन्होंने रोड जाम कर दिया। শুকিয়ে গেছে, আমরা যাব কোথায়? আমাদের কাউন্সিলর কোনোদিনও আসে না পাড়াতে দেখার জন্য, ওই জন্য আমরা আজকে পথ অবরোধ করেছি। যদি উনি আসেন, উনি আমাদের কি সলিউশন দিচ্ছে আমরা দেখবো, আর ভারবেলি নয়, রিটার্ন দিতে হবে। কতদিনের মধ্যে হবে? যতদিন না আমাদের পাড়াতে কল দিচ্ছে ততদিন আমাদেরকে 2 ট্যাঙ্কার করে জল দিতে হবে, সকাল বিকেল 2 বেলা। আমরা যাব কোথায়? উনি যদি এখন আসে তবেই আমরা তার ব্যবস্থা নেব, তার আগে আমরা কিছু ব্যবস্থা নিতে পারবো না। আমি 12 নম্বর ওয়ার্ডে থাকি, আমার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হচ্ছে রাজু গোস্বামী। তো এই লিখিত কোনো অভিযোগ করেছেন? লিখিত 10 বছর ধরে দিয়েছি, উনার মনে হয় ফাইল ভরে গেছে, কিন্তু উনি কোনোদিনও আসে না। যতবার যাওয়া হয় বলে আমি দেখছি, কিন্তু কোনোদিনও দেখে না। আজ আমি উনাকে দেখতে চাই। ভোটের সময় ভোট নেবে আর কাজের সময় কাজ করবে না। দেখা যাচ্ছে রাস্তাও খারাপ আছে, রাস্তা খারাপ আছে, ড্রেন আছে, কিছু করে না। শুধু ইয়ের থেকে পাস হচ্ছে সব কিছু, রাস্তা ড্রেনের, কিন্তু টাকাটা তো উনি নিয়ে নিচ্ছে। কি মনে হচ্ছে আপনাদের এলাকায় বাদ দিয়ে অন্য এলাকায় কাজ হচ্ছে? হ্যাঁ, সব এলাকায় কাজ হচ্ছে। আমরা মুসলিম বস্তি বলে আমাদের এলাকায় কাজ হয় না। কতজন এখানে আছে মোটামুটি বাসিন্দা? অনেকগুলো বাড়ি আছে, মোটামুটি 30টা বাড়ি আছে, 30-40টা। নাজেহাল এই গরমে, সেখানে পানীয় জল এবং মানে ব্যবহারকারী জল কিছুই পাচ্ছে না ওরা। তার প্রতিবাদে আজকে মানে নিরুপায় হয়ে এখানকার নয়া নিউ কলোনির মানুষেরা, বিশেষ করে মহিলারা এসে পরে এখানে বিক্ষোভ করছেন। এবং ওদের দাবি হচ্ছে যে এখানকার যিনি কাউন্সিলর 12 নম্বর ওয়ার্ডের সমরজিৎ গোস্বামী, তিনি দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে আসেন না বা এদের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনেন না। জলের দাবি ওনার কাছে আছে, উনি এখনও আসেননি। ওনার আশ্বাস পেলে ওনারা উঠবেন এরকম একটা কথা বলেছেন, উনি এখনও আসেননি। বারবার কথা বলার সত্ত্বেও ওনার কোনো কর্ণপাত নেই ওনাদের। তাই অভিযোগ করছে কি কাউন্সিলর কখনো এখানে আসেই না। হয়তো কাউন্সিলর তো আসে না 12 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার কাউন্সিলর কোথায় দেখতে পায় না, তার এরিয়ায় কোনো জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে সমস্যা হয়। এবং এখানকার যিনি কাউন্সিলর তিনি আসেন, কিন্তু 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। আপনার পরিচয়? আমি সোমনাথ চ্যাটার্জি, জেলা সম্পাদক জাতীয় কংগ্রেস। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल व्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU,
एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई-बाइक, solution for pollution. Joy e-bike now get iconic brand with modern power for greener tomorrow. Joy e-bike की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। Joy e-bike में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई-बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई-बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, एक और प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिम बर्धमान ज़िला शाखा के नेताओं द्वारा आज आसनसोल के BNR इलाके में स्थित कॉफ़ी हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहाँ पर पार्टी को लेकर और हाल ही में एक लड़की के यौन शोषण के मामले में पार्टी के ज़िला अध्यक्ष दानिश अजीज़ की गिरफ्तारी को लेकर कई बातें सामने रखी गई। आप मीडिया के जो साथी हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे कॉल पे यहाँ पे आना पसंद किया। देखिए, आज से 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने एक प्रेस मीट के जरिए अपने इलाके में, चूँकि MIM ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, तो हम लोगों ने इंडिया जोट के जो कैंडिडेट है और मेरे इलाके की जो लोकल लड़की है, लोकल बेटी, घर की बेटी है, जहां खान को MIM ने बाहर से सपोर्ट किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठी तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं। तो जहां खान मेरी लोकल कैंडिडेट है, जिसको MIM पश्चिम बर्धमान ने सपोर्ट किया। और ठीक उसी दिन, जिस दिन हम लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक उसी दिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जनाब दानिश अजीज साहब शाम में
आसनसोल से नहीं बल्कि आद्रा, यहाँ से बगल में एक छोटा सा शहर है, आद्रा से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये बात आसनसोल और एतराफ़ के इलाके में फिजाओं में घूमने लगी कि दानिश अजीज रेप के आरोप में अरेस्ट हो गए। ये मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ हम लोगों को। देखिए, बात ऐसा है कि मेरे इलाके में माहौल क्या बनाया गया, क्या माहौल बना हुआ है, ये सभी सारे लोग जानते हैं। दानिश अजीज जहाँ रहते हैं वो इलाका है कुमरपुर का इलाका, और उसका थाना पड़ता है साउथ पीपी। और जिस लड़की के तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए कि दानिश अजीज आरोपी है, रेप किया दानिश अजीज ने उस लड़की को, सामने आ रहा वो लड़की शायद रहने वाली धनबाद की है। और केस जो लिया जाता है, एफआईआर जो दर्ज होता है, वो आसनसोल नॉर्थ पीएस में। मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं बर्नपुर में रहने वाला शख्स हूं और मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, मैं अगर नॉर्थ पीएस में जाके एफआईआर दर्ज कराना चाहूँगा तो क्या वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज जो होंगे वो मेरा एफआईआर लेंगे? नहीं लेंगे। और ये बात सामने आ गई खुल करके कि ये सिर्फ मतलब ये रेप का मामला या दानिश अजीज के साथ फ्रॉड का मामला, ये मामला तक रुका हुआ नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो एक पावर है वो इससे जुड़ा हुआ है। दानिश अजीज का केस को नॉर्थ पीएस में ले लेने के बाद जेम्स बॉन्ड के तरह नॉर्थ का पुलिस आद्रा से अरेस्ट कर लेती है और आसनसोल कोर्ट तक केस पहुंच जाता है। दानिश अजीज को लाकर झांगरी मोहल्ला टीओपी, जहां पे मतलब नॉर्थ पीएस का एक फाड़ी है, वहां रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उन पुलिस अफसरान से जो मेरा रेल पार का इलाका है, नशा और ड्रग्स के मतलब ये में पूरा घिरा हुआ है। मुसलमान नौजवान से नशा का सामग्री बेचवाया जाता है। मुसलमान नौजवान नशा करता है और मुसलमान नौजवान को 14, 15, 12 साल का सजा होता है। कहीं ना कहीं सिर्फ माइनॉरिटी को यूज किया जा रहा है, जो मुसलमान तबका रेल पार में। और दानिश अजीज इस वजह से इस हादसे का शिकार बने हैं कि दानिश अजीज खुद रहते तो कुमरपुर में है, लेकिन उनका जो पूरा कार्यकाल गुजरा है 2-4 साल का, जब से MIM पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में काम करना शुरू किया है, तो सभी जानते हैं कि नॉर्थ में बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल हो गया है MIM को। तो बदनाम भी कहाँ से करना है? नॉर्थ से ही करना है। अब देखिए, सवाल यहाँ पे होता है कि केस कानून के पास है, कानून जो फैसला करेगी वो सराखों पे। मुझे अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि जो कसूरवार होगा उसे सजा दिया जाएगा। अगर दानिश अजीज कसूरवार है, मोस्ट उन्हें सजा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़की गलत बोल रही है तो उसे गलत ठहराया जाए, ये तो कानून के हाथ में मामला है। लेकिन इस तरह से किसी नौजवान को, हाँ, दानिश अजीज ने अगर कोर्ट मैरिज किया है, जिस तरह से सामने आ रहा है कि लड़की ने बताया कि मैरिज रजिस्ट्री होया हुआ है, अगर होया हुआ है तो फिर ये रेप का आरोप, मतलब पूरा उलझाने का। लोग भी समझते हैं अच्छी तरह से कि ये जो मामला सामने आ रहा है, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक खेला खेला जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मजलूम का, पिछड़े का, दलित का, मुसलमानों का सिर्फ नहीं, सभी का आवाज बन के हिंदुस्तान में काम कर रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है और उनके साथ में काम करने वाले लोग गलत का साथ दे, ऐसा हो नहीं सकता है। दानिश अजीज अगर कसूरवार है, उन्हें सजा दिया जाए, इस बात पे हम लोग मतलब फुल्ली सपोर्ट करते हैं कि हाँ, उन्हें सजा दिया जाए। लेकिन दानिश अजीज अगर बेगुनाह है तो किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिल सकता है। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दानिश अजीज के साथ में खड़ा, ये भी बात सामने आ रहा है उठकर कि दानिश अजीज को पार्टी से निकाल देना चाहिए। दानिश अजीज के ऊपर जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। दानिश अजीज मुजरिम है, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, उनके ऊपर केस है, तो ये कानून उसका फैसला करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल में दानिश अजीज ने एक बात कहा है कि अभी सिर्फ दानिश अजीज को अरेस्ट किया गया है कैप्टन के शक्ल में। कैप्टन चेंज होते रहता है, जरूरी थोड़ी सचिन तेंदुलकर कैप्टन रहेगा। सौरभ गंगोली भी बन सकता है, युवराज सिंह भी बन सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तौर पे काम करेगी। और इस बात को आप लोगों को साफ सुथरा मीडिया साथियों के माध्यम में पहुंचा देना चाहता हूं कि अगर आप मजलिस से इतना डर गए हैं तो आप अपना कोशिश करते रहें। दानिश अजीज गया, कल कोई और जा सकता, मजलिस पीछे नहीं हटेगा। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आपने कैप्टन की बात किया, दानिश अजीज नहीं तो यहाँ पे और कौन? देखिए, बात ऐसा है कि अभी तो फिलहाल दानिश अजीज ही सदर है। कल अगर उनके ऊपर आरोप साबित हो जाता है, वो अगर मुस्लिम साबित हो जाते हैं
तो जाहिर सा बात है वो पार्टी में रह नहीं सकते हैं। आला कमान पार्टी से उन्हें डिजॉल्व भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। उस वक्त जब वैसा मोमेंट सामने आएगा तो जरूर कोई ना कोई सदस्य सामने आ जाएगा, और जाहिर सा बात है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेट है इसमें से सामने आएगा, कोई भी हो सकता है। XYZ जितने भी हमारे बंदे साथ में काम करने वाले जिनके अंदर वो कुव्वत होगा। आपको क्या लगता है कि दानिश पे जो आरोप लगा वो सही है गलत है? देखिए बात ऐसा है कि अभी तो फिलहाल हम लोग इस बात को पुष्टि नहीं कर सकते। क्या लगता है, आप तो दानिश के बहुत करीबी थे। देखिए ये तो मतलब अलग तरह का बात है कि करीबी दानिश अजीज बेल बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे शख्सियत, पूरा आसनसोल जानता है, और वो एक मतलब मजलूम का आवाज बन के सामने आ रहे थे। हर एक मुद्दा में दानिश अजीज ने सामने आकर के फाइट किया है, और जिस किसी के साथ भी जरूरत पड़ा है कि ना MIM को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, दानिश अजीज वहां पे खड़ा हुए। उस एतबार से दानिश अजीज बहुत अच्छे आदमी है। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।